बच्चों करें कंटिन्यू टॉपिक अब। बस ये स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर ऑलमोस्ट ओवर हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद कौन सा चैप्टर कंटिन्यू करना है? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। Yes. Okay, in the last class we have done statistics in singular sense, right? Now statistics in plural sense. We have discussed statistics can be defined in two senses. First is singular and second is plural sense. Now we are discussing statistics in plural sense. So according to Horst-Sikrist, Horst-Sikrist ने statistics को define किया गया था। उन्होंने उसकी एक डेफिनेशन दी थी। मैं उस डेफिनेशन को कुछ पॉइंट्स में डिवाइड कर रही हूँ ताकि वो इजीली आप लोग अंडरस्टैंड कर पाओ, और वही पॉइंट्स को जब आप मर्ज कर दोगे ना तो इनकी डेफिनेशन बन जाती है हॉर्स्ट-सिक्रिस्ट की स्टैटिस्टिक्स की प्लूरल सेंस की डेफिनेशन. एंड दीज पॉइंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स. Features of statistics. So statistics can be defined as statistics are aggregate of facts. Second, statistics can be affected to a marked extent by multiplicity of causes. मैं भी आपको पूरा बोर्ड शो करूंगी बच्चों. Statistics should be collected in systematic manner statistics should be collected for predetermined purpose placed in relation to each other should be enumerated and estimated according to reasonable standard of accuracy and the last is numerically expressed. सी बच्चों, ये 7 फीचर्स हैं. अगर आप इन 7 फीचर्स को कंबाइन कर देते हो, मर्ज कर देते हो एक पैराग्राफ की फॉर्म में, देन दिस इज द डेफिनेशन गिवन बाय हॉर्स्ट-सिक्रिस्ट इन प्लूरल सेंस, स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस. एक एक पॉइंट में आपको शो कर रही हूँ. सो आप अगर आपको आएगा ना एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, देन यू कैन एक्सप्लेन एनी 3 or 4 फीचर्स अमंग ऑल दीज. और अगर आएगा कि प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करो,
then you have to merge all the points and you can define the definition of statistics in plural sense. Clear? So first we have it is aggregate of facts. First feature is statistics are aggregate of facts. मैं one by one अभी सारे features discuss करूंगी. First मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से features हैं. Second, we have statistics can be affected to a marked extent by multiplicity of causes. Statistics बहुत सारे causes से affect होती है, इसलिए हमें observe करनी पड़ती है information. Statistics should be collected in a systematic manner. Statistics should be collected for predetermined purpose. It should be placed in relation to each other. It should be enumerated and estimated according to reasonable standard of accuracy. Last, it is written according to reasonable standard of accuracy. And the last point we have is it should be numerically expressed. 7 points समझ आ गए? सिर्फ read किया, अभी मैंने कुछ भी समझाया नहीं है. Statistics में अगर आपको features आएंगे तो इसमें से कोई भी 3 or 4 points according to your weightage of the question you can write any points. Clear बच्चों? Now let us discuss one by one. मैं अभी ये रेज कर रही हूँ, एक एक पॉइंट आपको क्लियर करूंगी. First is statistics are aggregate of facts. Ma'am, what is the 6th point? Sorry beta. Ma'am, what is the 6th point? 6 point. I have erased it. I'm discussing one by one each and every point, okay? It should be, the 6th point was statistics should be enumerated or estimated according to the reasonable standard of accuracy. Clear, Anavya? Yes, ma'am. Okay. So statistics are aggregate of facts. देखो बच्चों, सबसे पहले अगर कोई भी इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन है तो स्टैटिस्टिक्स में इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, राइट? इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन में स्टैटिस्टिक्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. मींस अब मैंने बोल दिया कि मेरे पास अनव्या के मार्क्स है. मार्क्स है सिर्फ एक सिंगल सब्जेक्ट के मार्क्स है. लेटर सपोज अकाउंट्स के मार्क्स है और अकाउंट्स में है इसके 70 मार्क्स आउट ऑफ 80. तो दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे स्टैटिस्टिक्स कभी भी स्टडी नहीं करता. मीन सिंगल पर्सन की या सिंगल इंडिविजुअल लेवल पे स्टैटिस्टिक्स स्टडी नहीं करता. स्टैटिस्टिक का मेन फीचर है कि ये एग्रीगेट्स को स्टडी करता है. एग्रीगेट मतलब सम टोटल ऑफ ऑल इन द इकोनॉमी. इट मींस अगर इकोनॉमी के अंदर एक सिंगल इंडिविजुअल है और इसकी इनकम शो की गई है तो दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी इन स्टैटिस्टिक्स. दिस इज नॉट प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन. अगर आपके पास पूरी इकोनॉमी के कुछ पर्संस की इनकम है, सो दिस इज द एग्रीगेट. तो एग्रीगेट पे हम लोग स्टैट्स की इंफॉर्मेशन को कंसिडर कर सकते हैं. Otherwise, there is no use of individual level information for statistics. हाँ, अगर मैंने अकाउंट्स के, इकोनॉमिक्स के, बिजनेस स्टडीज के. यस बच्चे बोलो. इशिका मैम वॉइस लैग हो रही. अभी ठीक है? यस. तो जितने डिफरेंट मार्क्स हैं, now this is statistical information because now we get the aggregate of the marks here. तो सिंगल मार्क्स किसी भी टाइप की स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा. देयर शुड बी एग्रीगेशन ऑफ एनी information. First point clear है? First feature, statistics are aggregate of facts. It will not consider data at individual level.
It will consider data only at aggregations. First point clear to everyone? Yes. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, बच्चे. Next point is. मैम हाँ रोहित. बोलो रोहित. मैम रिपीट कर दो. रोहित तुमने अभी ज्वाइन किया ना बच्चा? यस मैम. तो फिर अभी इसकी मैं वीडियो डाल दूंगी, प्लीज उस टाइम पे वहां पे देख लेना, ठीक है बेटा? एक बारी रिकॉर्डिंग चेक कर लेना फिर से, या फिर मैं बिल्कुल एंड में दोबारा समझा दूंगी पॉइंट को. सेकेंड पॉइंट वी हैव इज स्टैटिस्टिक्स आर अफेक्टेड to a marked extent by multiplicity of causes. बच्चों ये पॉइंट अभी अभी हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया है. देखो स्टैटिस्टिक्स जो होता है ना वो अफेक्ट होता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस. मतलब अगर हम लोग प्राइस की बात करते हैं, प्राइस बढ़ता है और कम होता है, तो उसके अकॉर्डिंग डिमांड भी बढ़ती है और कम होती है. लेकिन अगर मैं कमोडिटी, मान लो एक टीवी है, टीवी की मैं डिमांड की बात करूं, तो क्या टीवी की डिमांड सिर्फ और सिर्फ उसके प्राइस से अफेक्ट होती है? तुम लोग डिमांड चैप्टर कर चुके हो. अब मुझे ये बताओ, क्या टीवी की डिमांड सिर्फ और सिर्फ प्राइस से अफेक्ट होती है? हाँ जी बच्चों बोलो, क्या डिमांड सिर्फ प्राइस से अफेक्ट हो सकता है कि और भी फैक्टर्स है विच कैन अफेक्ट द डिमांड फॉर टीवी इन द मार्केट? यस मैम, और भी फैक्टर्स कर सकते हैं. और भी फैक्टर्स है ना? तो जो टीवी की डिमांड है दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय प्राइस ओनली, वो इनकम से भी अफेक्ट हो सकती है, वो टेस्ट एंड प्रेफरेंस से भी अफेक्ट हो सकती है, वो आपकी एक्सपेक्टेशन से भी अफेक्ट हो सकती है, या फिर कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो उससे भी अफेक्ट हो सकती है. क्लियर? तो कहते हैं स्टार्स की जो इंफॉर्मेशन होती है ना वो बहुत सारे कॉजेस से अफेक्ट हो सकती है. तो हमें हमारे लिए इतने मल्टीपल कॉजेस का अफेक्ट जो तुम्हारा होता है, इतने, अभी ये डिमांड है, डिमांड इतने सारे फैक्टर से अफेक्ट हो रही है, हम लोग साइमल्टेनियसली ये सारे कॉजेस को शो नहीं कर सकते. इसलिए जब भी हम लोग स्टार्स की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि एक एक्सटेंट तक वो कौन से फैक्टर से सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रहा है. तो जिस फैक्टर से वो सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रहा है उस फैक्टर के अकॉर्डिंग हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. पॉइंट समझ आ गया? दोबारा बताऊं, हमारे पास मार्केट के अंदर किसी भी कमोडिटी की डिमांड सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं होती है, बल्कि वो मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है. तो मल्टीपल फैक्टर्स की जितनी भी कॉजेज होते हैं हम उसे एक साथ शो नहीं कर सकते कि मैं कंसिडर कर रही हूँ डिमांड को इनकम के साथ भी, टेस्ट के साथ भी, एक्सपेक्टेशंस के साथ भी, सब्स्टिट्यूट्स के साथ भी. इट इज नॉट पॉसिबल. तभी तो हम लोग जब डिमांड का चैप्टर करते हैं हम क्या करते हैं, बाकी फैक्टर्स तो कभी भी चेंज हो सकते हैं, हम प्राइस को कांस्टेंट लेके चलते थे तभी चेंजेस को शो कर पाते थे. तो इसलिए स्टार्ट्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते टाइम भी ना इट शुड बी ऑब्जर्व कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जिससे सबसे ज्यादा स्टार्ट्स की इंफॉर्मेशन आपकी अफेक्ट कर रही है, उसी इंफॉर्मेशन को हम लोग कलेक्ट करते हैं. पॉइंट क्लियर है कि दोबारा बताऊं बच्चों? Yes, please say yes or no. Is it clear? Or I have to explain? Yes. मैम रिपीट कर दो. हाँ रिपीट कर देती हूँ बच्चे, से पढ़ लेना. Statistics are affected to a marked extent by multiplicity of causes. मैंने आपको ये एक एग्जाम्पल से इसलिए क्लियर किया है क्योंकि आप लोग डिमांड कर चुके हो. तो कहते हैं अगर भी बहुत जो मार्केट के अंदर टीवी की डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं और हम लोग वो फैक्टर्स पढ़ चुके हैं, इनकम अफेक्ट कर सकती है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस अफेक्ट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, एक्सपेक्टेशंस है,
तो बहुत सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से टीवी की डिमांड अफेक्ट हो सकती है। तो हम जब भी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं स्टैटिस्टिक्स की, तो ये एक्चुअली देखते हैं कि कौन सा ऐसा कॉज है जिससे डिमांड सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रही है। सो दैट फैक्टर शुड बी ऑब्जर्व केयरफुली while collecting information for statistics. तो वो इंफॉर्मेशन जब भी आप कलेक्ट कर रहे हो, आपने ये देखना है कि सबसे ज्यादा अफेक्ट किसका। सारे फैक्टर्स हैं, हम सारे फैक्टर्स की इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट चलते हैं। जब तुम लोगों ने इकोनॉमिक्स नहीं ली थी, डिमांड सिर्फ और सिर्फ प्राइस से अफेक्ट होती है। वो बाद में पता लगा कि डिमांड इनकम से भी अफेक्ट हो सकती है, टेस्ट से भी अफेक्ट हो सकती है। सो हियर रोहित, आवाज नहीं आ रही बेटा मेरी? मैम वॉइस नहीं आ रही। सबको ही नहीं आ रही? इट इज नॉट क्लियर, ऑडिबल नहीं है? Ma'am, it is audible. मैम आपकी वॉइस पॉज हो जा रही है बार बार। See, now it is audible. पॉज मैंने की थी बेटा, बिकॉज समटाइम नेटवर्क इशू रहता है ना, तो वो स्वैप करना पड़ता है। Yes, ma'am, it's all right now. Yes, खुशी, now it is audible. Yes, ma'am. यस मैम। Okay. हाँ रोहित बेटा, मेरा पॉइंट समझ आया कि हम लोग सारे फैक्टर्स के अफेक्ट को शो नहीं कर सकते, इसीलिए हम देखते हैं कि डिमांड सबसे ज्यादा किससे अफेक्ट हो रही है। एंड वी नो दैट कि सबसे ज्यादा डिमांड किससे अफेक्ट होती है? प्राइस से अफेक्ट होती है। तो स्टैट्स की इंफॉर्मेशन जो है, वो जो मेन फैक्टर है, कहते हैं आप मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस के इफेक्ट्स को नहीं गैदर कर सकते हो, तो जो मेन फैक्टर होता है सिर्फ उसी फैक्टर के इफेक्ट को हम लोग शो कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? कि दोबारा बताऊं, बोलो। रोहित, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. रोहित, आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है बच्चे मेरे पास। Yes, ma'am. तो इसीलिए हम लोग सेपरेटली हर एक के इफेक्ट को शो नहीं कर सकते हैं। तो जब भी आप लोग स्टैट्स की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो, तो हमेशा ये देखते हैं कि मेन कौन सा फैक्टर है जिससे वो इंफॉर्मेशन अफेक्ट हो रही है, राइट? ओके, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज, मेरे को वो सीक्वेंस याद नहीं है किस सीक्वेंस में मैंने अभी पॉइंट्स लिखे थे, और वो चेंज हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक के बाद एक सेम पॉइंट आना चाहिए। तो अगर कोई पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए तो सोचना मत कि मैम ने गलत लिख दिया, आप जिस मर्जी सीक्वेंस में से लिख सकते हो। इट शुड बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस का मतलब होता है बच्चे, इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन नंबर्स। मींस स्टैट्स के अंदर क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन का कोई यूज नहीं है, नो यूज, बट क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। राइट बच्चों, इस टर्म से ही पता लग रहा है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस मींस जो भी नंबर्स में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इंफॉर्मेशन इज यूजफुल। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन हैज नो यूज इन स्टैटिस्टिकल टर्म्स। Devansh, my voice is not audible again. What is happening? Is it audible to everyone or not? यस मैम। Yes, ma'am. Ma'am, it is audible to. देवांश बच्चे एक बार ना अपना आप स्पीकर म्यूट अनम्यूट करो एंड वीडियो ऑन ऑफ करो। समटाइम्स नेटवर्क इशू मेरी तरफ से नहीं, आप लोगों की तरफ से भी हो सकता है। Yes, Devansh, swap it for 1 or 2 seconds. Now it is audible or not? Devansh. ओके बच्चों, अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है वॉइस की
तो ये लेक्चर अभी रिकॉर्ड हो रहा है, मैं अभी ग्रुप पे डाल दूंगी, प्लीज एक बारी सुन लेना जहां जहां आपके पॉइंट मिस हुए होंगे। अभी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, प्लीज। ओके, सो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन का कोई यूज नहीं है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन का यूज है। अब मैं कह रही हूँ कि अनव्य की परसेंटेज बहुत अच्छी आई है, ठीक है, माई वर्ड इज, माई स्टेटमेंट इज, अनव्य की परसेंटेज 10th में बहुत अच्छी आई है। अब मुझे क्या पता है कितनी अच्छी आई है, ये तो क्वांटिटेटिव टर्म हो गई ना, कि बहुत अच्छी आई है, बहुत अच्छी है, सॉरी क्वालिटेटिव वर्ड हो गया। तो क्वालिटेटिव वर्ड का तो कोई यूज नहीं है। हाँ, अगर मैं कहती हूँ कि अनव्य की परसेंटेज 95% मार्क्स है, so this information is useful because now it can be expressed in numbers, so it is quantitative information. Now it can be help in statistical information, otherwise there will be no use. तो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस टर्म क्लियर है बच्चों? यस मैम। यस मैम दोनों में कंफ्यूजन है। हाँ, मैम बोलो वो खुशी, क्या कंफ्यूजन है? मैम डिफरेंस बता दो। डिफरेंस ये है खुशी, क्वालिटेटिव मतलब सिर्फ एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करना। जैसे मैं सिर्फ वर्ड यूज कर रही हूं, इट इज गुड, बैड, लेस, मोर, so these are the qualitative words only. हाँ, अगर मैं ये कह रही हूँ तो this is what quantitative information. It is 200 rupees less than rupees 500. तो ये क्या इंफॉर्मेशन? क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है। समझ आया खुशी? अगर हम अच्छा बुरा कम ज्यादा यूज कर रहे हैं वर्ड्स, तो ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हमें स्टैट की टर्म्स में। हाँ, अगर हम परसेंटेज शो कर रहे हैं या फिर हम नंबर्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये परसेंटेज क्वांटिटेटिव है, और स्टैट्स में क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ही होती है, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन नहीं होती। समझ आया खुशी अब? यस मैम। ओके, next point is collected in a systematic manner. See, stats की जितनी भी इंफॉर्मेशन है that should be collected in a systematic manner, क्योंकि अगर आपकी इंफॉर्मेशन systematic means systematic manner में collected नहीं होगी, तो it will lead to misconclusions. It should be collected in a systematic manner. Otherwise, misleading of conclusions. वैसे इस पॉइंट का क्या मतलब है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है स्टार्ट्स की, वो एक सिस्टमैटिक, एक ऑर्डरली मैनर में होनी चाहिए, क्योंकि इसी इंफॉर्मेशन के बेस पे हम लोग कंक्लूजन्स दे रहे हैं। और अगर आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो एक ऑर्डरली मैनर में नहीं होगी, तो मिसलीडिंग हो जाएगी कंक्लूजन्स की। इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने बोला कि मैं बॉयज की पॉकेट अलाउंसेस की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हूँ, सो हियर आई हैव रिटन बॉयज की इंफॉर्मेशन, बट जब मैंने इसको भी मेजर कर लिया, बट मैंने कलेक्शन किसकी करनी थी? सिर्फ बॉयज की। अब यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज दोनों क्या हो गए? मिक्स हो गए। तो दिस सिस्टम इज एक्चुअली नॉट इन ऑर्डर। हाँ बोलो इशिका। मैम हाँ इशिका बोलो। इशिका स्पीक अप, योर ऑडिबल बच्चे। मैम आपकी वॉइस ना क्रैक हो रही है बीच बीच में। एक मिनट, लेट मी आस्क एवरीवन, इज इट क्रैकिंग फॉर एवरीवन? मैम हाँ, आपकी वॉइस क्रैक हो रही है बीच में।
Okay, No, okay, ma'am, okay. ma'am, it is not cracking. Yes, ma'am. Riddhi, it is cracking. No, ma'am. Ishika, you must rejoin the class, बच्चा. तो कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर क्लियर है बच्चों. हमारी इंफॉर्मेशन एक ऑर्डर में होनी चाहिए. हैप्पसार्ड मैनर में जो भी इंफॉर्मेशन होगी दैट इज नॉट यूजफुल. उससे हमारे कंक्लूजन्स की जो फॉर्मेशन है, ड्राइंग ऑफ कंक्लूजन्स है, वो प्रोसेस गलत हो सकता है. दिस वाज द सिंपलेस्ट पॉइंट. क्लियर? Yes, ma'am. Okay, next we have Yes. it should be collected for a predetermined purpose. Collected for a predetermined purpose. प्रीडिटरमाइंड पर्पस का मतलब पहले से ही पता होना चाहिए, है ना. तो हमें हमारा पर्पस जिस भी मेथड के लिए, जिस भी इंफॉर्मेशन के लिए हमारा कलेक्शन है इंफॉर्मेशन का, दैट पर्पस शुड बी प्री डिफाइंड. पहले से ही हमने अपना पर्पस डिफाइन किया होना चाहिए कि हम लोग, अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि मैं बॉयज की पॉकेट अलाउंसेस की इंफॉर्मेशन को गैदर कर रही हूँ. So here my purpose is already set. It is predefined. मैंने पहले से ही डिसाइड किया हुआ है कि मैंने सिर्फ बॉयज की पॉकेट अलाउंसेस की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है. सो अगर आपको पता होगा पहले से, आप क्या कर रहे हो, यहां से भी इंफॉर्मेशन ले रहे हो, यहां से भी इंफॉर्मेशन ले रहे हो, गर्ल्स की भी ले ली, बॉयज की भी ले ली, उसके बाद हमने ओल्ड एज की भी ले ली, राइट. उसके बाद हमने मेल फीमेल्स की भी इंफॉर्मेशन को गैदर कर लिया. बट मेरा तो पर्पस क्या था, मैं इन सबकी इंफॉर्मेशन को कैसे अरेंज करूंगी अगर मुझे मेरा पर्पस पहले से नहीं पता होगा. मुझे पता है आई एम कंसर्न ओनली विद द पॉकेट अलाउंसेस ऑफ बॉयज, तो मैं सिर्फ इनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगी. मेरे लिए इजी हो जाएगा ना. अगर मुझे कोई मेल फीमेल लिखते हैं, नहीं मुझे आपकी इंफॉर्मेशन चाहिए ही नहीं, मुझे किसी ओल्ड एज की इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, मुझे किसी गर्ल की इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बॉय की इंफॉर्मेशन चाहिए. Clear? So your purpose should be predefined. Clear है बच्चों वाला पॉइंट? रिपीट तो नहीं करना. हाँ जी बच्चों, क्लियर है? Yes, ma'am. Yes. Okay. मैम हाँ बेटा. मैम ये इशिका, दोबारा अब आवाज एक्सप्लेन आ रही करना. मैम वो बीच बीच में क्रैक हो रही है, इशिका, पता मैंने नहीं अभी जो किस साइड. एक्चुअली इशिका वो सिर्फ तुम्हारे लिए हो रही है बच्चे, बाकी बच्चों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है. तो देयर माइट बी सम नेटवर्क इशू फ्रॉम योर साइड. समटाइम्स होता है ऐसा, कभी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैंने रिज्वाइन करने के लिए कहा था आपको क्लास. अभी देखो ऑडिबल है. यस. ओके. जो मैंने अभी पॉइंट एक्सप्लेन किया था वो था कि जितनी भी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है दैट शुड बी कलेक्टेड फॉर प्री डिटरमाइंड पर्पस. हमारा पर्पस पहले से ही डिसाइड होना चाहिए. इट शुड बी प्री डिफाइंड. हमें पता होना चाहिए कि हम किससे रिलेटेड अपनी इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं. तो मैंने यहाँ पे अपना पर्पस पहले से ही मेंशन किया हुआ है कि मैं बॉयज की पॉकेट अलाउंसेस की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रही हूँ. सो अगर मैं बॉयज की पॉकेट अलाउंसेस की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रही हूँ, माई पर्पस इज ऑलरेडी डिफाइंड हियर. सो इट इज ऑलरेडी डिफाइंड. अब मुझे कोई गर्ल्स की इंफॉर्मेशन दे रहा है तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड, या मुझे कोई ओल्ड एज की इंफॉर्मेशन दे रहा है, इट इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड फॉर मी, बिकॉज मैंने अपना पर्पस ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है, दैट इज बॉयज पॉकेट अलाउंसेस. क्लियर है बच्चे? यस.
Now next point is placed in relation to each other. Placed in relation to each other. What does it mean? जब हम स्टैट्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो डेटा शुड बी होमोजीनियस इन नेचर, क्योंकि अगर ये होमोजेनिटी नहीं होगी तो हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे. प्लेस्ड इन रिलेशन का मतलब है टू मेक कंपैरिजंस. अब अगर मैं आपको कहूं कि मैं क्या कर रही हूं, बॉयज की पॉकेट अलाउंसेस को कंपेयर कर रही हूं, कंपेयरिंग विथ देयर हाइट्स. आप मुझे बताओ, क्या मैं इन दोनों इंफॉर्मेशन के डेटा को कंपेयर कर सकती हूँ? No, ma'am. No. Why? Because they are not homogeneous, they are heterogeneous. ये इंफॉर्मेशन कैसी है? Heterogeneous. Heterogeneous information can't be compared. Only homogeneity is the essential feature to compare any data. हाँ, मैं बॉयज की पॉकेट अलाउंस को गर्ल्स की पॉकेट अलाउंस से कंपेयर कर सकती हूँ. ठीक है ना? अब इन दोनों का कंपैरिजन पॉसिबल है बिकॉज दोनों इंफॉर्मेशन पॉकेट अलाउंसेस की है. नाउ आई कैन कंपेयर इट. क्लियर है? प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर का मतलब होता है डाटा शुड बी कंपेयर्ड विद ईच अदर ओनली व्हेन इफ देयर इज होमोजेनिटी. If there is Yes, ma'am. homogeneity. This point is clear to everyone? Yes, ma'am. Okay, Yes, the ma'am. last, yes, Yes, the ma'am. Yeah. last point is it should be enumerated or estimated according to the reasonable standard of accuracy. Let me write this point. Should be enumerated and estimated according to reasonable standard of accuracy. What does it mean, बच्चे? See, enumeration method. Whenever there is small scale area, whenever there is small scale area, enumeration method is used. अगर आपका इन्वेस्टिगेशन का एरिया स्मॉल है, छोटा एरिया है, तो इस केस के अंदर हम लोग एन्यूमरेशन मेथड यूज करेंगे. बट अगर आपका एरिया लार्ज है तो यहां पे हम लोग एस्टिमेशन मेथड यूज करते हैं. एस्टिमेशन मेथड इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स की इंफॉर्मेशन जब आप कलेक्ट कर रहे हो ना, तो इट शुड बी मैच विथ स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी. मतलब हम लोग एक बड़े स्केल की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं और हम अप्लाई कर रहे हैं एन्यूमरेशन मेथड. सो दिस विल बी रॉन्ग. इससे आपको
हमें लार्ज स्केल में हमें एन्यूमरेशन यूज करना पड़ता है। तो स्टैट्स की इंफॉर्मेशन इसका मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, आपका स्टैंडर्ड मैच करना चाहिए एक्यूरेसी का। मैंने आपको पॉइंट क्लियर कर दिया कि हम लोग लार्ज स्केल की इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, यू आर यूजिंग एन्यूमरेशन मेथड, तो ये गलत हो जाएगा। स्टैंडर्ड एक्यूरेसी मैच, आप स्मॉल स्केल मेथड अप्लाई कर रहे हो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो स्मॉल स्केल के लिए वी ऑलवेज हैव एन्यूमरेशन एंड लार्ज स्केल के लिए वी ऑलवेज हैव एस्टिमेशन। क्लियर है बच्चों? Ma'am, can you please explain again? Ma'am, Yes, repeat. of course I can. Yes. देखो बच्चे, पॉइंट क्या है हमारा? स्टैटिस्टिक्स शुड बी एन्यूमरेटेड and estimated according to reasonable standard of accuracy. What does it mean? हमारा जब भी आप इंफॉर्मेशन को गैदर करते हो बच्चे, स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो मैं ना कहती हूँ, हमने अभी एक पॉइंट किया था, तुम लोगों को अगर याद हो, लॉ ऑफ डीएमयू किया था हमने, लॉ ऑफ डीएमयू किया था ना, वहां पे हमने assumptions ली थी। assumptions क्या ली थी? कि there should be स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। हमने एक assumption ली थी स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, कि तुम क्या कर रहे हो, 1 स्पून चाय पी रहे हो, 1 स्पून चाय पी रहे हो और तुम लोग कह रहे हो हमारी तो यूटिलिटी गिरी नहीं मैम, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, ये तो स्टैंडर्ड ही नहीं है। हम लोग अगर चाय की बात करें तो देयर शुड बी ऑलवेज अ कप ऑफ टी। अगर एक कप ऑफ टी है तभी हमारे पास, हम लोग बता सकते हैं यूटिलिटी बढ़ेगी या कम होगी, राइट? तो इस केस के अंदर हमेशा स्मॉल स्केल में एन्यूमरेशन मेथड अप्लाई किया जाता है और लार्ज स्केल में एस्टिमेशन मेथड अप्लाई किया जाता है। कि अगर आपका एरिया जो है वो बड़ा है तो वी विल ऑलवेज यूज एस्टिमेशन मेथड, और अगर हम लोग स्मॉल स्केल यूज करते हैं तो वी विल ऑलवेज यूज एन्यूमरेशन मेथड। क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. मैम एक बार No, फिर से ma'am. बता दो। मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ, 1 मिनट। सुनो इस पॉइंट को, पहले तो ये पॉइंट क्लियर करना। देखो एरिया वाले 2 पार्ट्स हैं, एक होता है स्मॉल स्केल एरिया, एक होता है लार्ज स्केल एरिया, राइट बच्चों? अगर स्मॉल स्केल एरिया, अगर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो मान लो सिर्फ सेक्टर 21 की, अगर आप सिर्फ स्मॉल सेक्टर के सेक्टर की बात कर रही हूँ, मान लो सिर्फ 21 सेक्टर की बात कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे एन्यू मेथड, मैं पूरे चंडीगढ़ की बात कर रही हूँ, लेट अस सपोज पूरे चंडीगढ़ की बात कर रही हूँ, तो पूरे चंडीगढ़ में मैं कौन सा मेथड यूज करूंगी? एस्टिमेशन मेथड। ठीक है, पहले मुझे बताओ ये पॉइंट क्लियर हुआ? एरिया वाइज स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। यस मैम। स्मॉल स्केल है तो हम लोग एन्यूमरेशन यानी एन्यूमरेटेड मेथड यूज करते हैं, और अगर लार्ज स्केल है तो वी विल यूज एस्टिमेशन मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म है अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। भैया मैंने तुम लोगों को बोला कि चंडीगढ़ की इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट करनी है, और तुम लोगों ने क्या किया? एन्यूमरेशन मेथड को यूज कर दिया। अभी बताऊंगी हम ना आगे, अभी ये स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे। एन्यूमरेशन मेथड का मतलब होता है आप एक एक पर्सन के घर जा रहे हो, पर पर्सन की इंफॉर्मेशन सारी कलेक्ट कर रहे हो, तो ये खुद करता है। एस्टिमेशन क्या होता है? आपने जैसे सैंपल ले लिए कुछ ना कुछ, और उन सैंपल देखो, जब हम लोग
अपना ब्लड का सैंपल देते हैं। अगर हमें कोई डिसीज हमने क्या करनी है, डायग्नोस करनी है, तो तुम्हारी बॉडी का तभी पता लगेगा बीमारी क्या है। क्या करते हैं, सिर्फ एक सैंपल लेते हैं ना, नहीं है। तो सेम यहाँ पे भी क्या किया, एन्यूमरेशन मेथड अप्लाई कर में कैसे जाओगे, कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगी। हम लोग इतनी इंफॉर्मेशन हो जाएगी। Well, voice was not audible. और अगर एस्टिमेशन दे दिया 5-6 तो लोग मैं टॉपिक पूरा करने लगती हूँ, तो वॉइस ऑडिबल नहीं है, सबको ऑडिबल नहीं है। Ma'am, it is. Ma'am, audible. नहीं, मुस्कान को ही ऑडिबल नहीं है कि बाकी सबको भी ऑडिबल नहीं है? Yes, please reply. Except Muskan, it is audible to everyone. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, then Yes, ma'am. continue. हाँ, because अभी कंटिन्यू करते हैं। मुस्कान, आपको बच्चे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है ना, यू कैन लिसन टू वीडियो, राइट? जितना भी रिकॉर्डिंग होगा आप प्लीज एक बारी सुन लेना। अच्छा, मुझे बताओ अभी ये पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ, हम लोग क्या कर रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन को यूज कर देंगे। लार्ज एरिया में आपने एन्यूमरेशन लगा दिया और स्मॉल एरिया में आपने एस्टिमेशन लगा दिया, तो उस केस में स्टैट्स की जो इन्फॉर्मेशन गैदर की गई होगी वो हमारे स्टैंडर्ड्स के साथ एक्यूरेट नहीं होगी, इसलिए स्टैंडर्ड्स के साथ मैच नहीं कर पाएगी। अब बताओ पॉइंट क्लियर है कि दोबारा रिपीट करूं, क्योंकि इस पॉइंट में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम थी। अगर रिपीट करना है तो प्लीज टेल मी, आई कैन रिपीट इट अगेन, नो प्रॉब्लम। अगर समझ नहीं आया दोबारा समझते हैं इस पॉइंट को, बोलो। Yes, ma'am. रिपीट करूं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो बच्चों, दो एरियाज होते हैं, सबसे पहले तो ये याद रखो, दो एरियाज हैं, एक स्मॉल है एक लार्ज है। स्मॉल स्केल में हमेशा हम एन्यूमरेशन मेथड यानी एन्यूमरेटेड मेथड को अप्लाई करते हैं, और लार्ज स्केल में इंफॉर्मेशन को हम लोग गैदर करते हैं एस्टिमेशन मेथड से, यानी एस्टिमेटेड होती है वो इंफॉर्मेशन। अब तुमने क्रॉस में अप्लाई कर दिया, लार्ज में एन्यूमरेशन अप्लाई कर दिया, स्मॉल में एस्टिमेशन अप्लाई कर दिया, तो इससे इंफॉर्मेशन क्या होगी, गलत होगी, तो वो हमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा। बस सिंपल सा पॉइंट है। इसीलिए स्टैट्स की इंफॉर्मेशन जब गैदर करते हैं, दो मेथड्स बनाए गए हैं, वन शुड बी एन्यूमरेटेड, वन शुड बी एस्टिमेटेड। स्मॉल स्केल है तो आपने सिर्फ एन्यूमरेटेड मेथड को अप्लाई करना है, और अगर लार्ज स्केल है तो आपने सिर्फ एस्टिमेशन मेथड को अप्लाई करना है। और अगर आप गलत, किसी भी गलत डायरेक्शन में दोनों मेथड्स को अप्लाई करोगे तो हमें एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। अब समझ आया है पॉइंट? Yes, ma'am. हाँ नव्या, क्लियर है? नव्या Yes, क्लियर? ma'am. Yes, ma'am. अब ये सारे फीचर्स हो गए, आज फीचर ही तुम्हारे लग रहे इतने लंबे गए हैं। अब कोई पॉइंट रिपीट तो नहीं करना, मैं सारे के सारे पॉइंट्स एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। फर्स्ट पॉइंट था हमारे पास कि जितने भी स्टैट्स की इंफॉर्मेशन होती है वो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होता है, मींस कि हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे अगर इंफॉर्मेशन है तो वो हमारे किसी यूज की नहीं है। अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स हमें ऑलवेज एग्रीगेट्स ही चाहिए, राइट? उसके बाद था अफेक्टेड टू मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। मार्केट के अंदर किसी भी एक फैक्टर की अगर डिमांड है तो वो बहुत सारे फैक्टर से अफेक्ट हो रही है, सारे इफेक्ट्स को शो करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि जो इंफॉर्मेशन हम लोग गैदर कर रहे हैं वो किस फैक्टर से सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रही है, उस फैक्टर को कंसिडर करके हम लोग स्टैट्स की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। सेकेंड पॉइंट था इट शुड बी कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, तो मतलब एक ऑर्डर, एक लॉजिकल मैनर में हम लोगों को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए। हैफजार्ड मैनर होगी तो वो ऑलवेज मिसलीड करेगी कंक्लूजन्स को। देन आफ्टर वी हैव इट शुड बी कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस। जिस भी इंफॉर्मेशन, जो भी आपका इंक्वायरी पर्पस है, आप पहले से ही अपना पर्पस प्री डिफाइन करके रखो कि किसके लिए आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हो। अगर आपको आपका मोटिव ही नहीं पता कि भाई हम कह रहे हैं हमने मार्क्स लेने हैं, भाई कैसे मार्क्स लेने हैं, कौन सी क्लास में मार्क्स लेने हैं, किस सब्जेक्ट में मार्क्स लेने हैं, ओवरऑल लेना है, सब्जेक्ट वाइज लेना है, तो हमारा पर्पस ही जब तक डिफाइन नहीं होगा हम लोग
किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा सकते और हमारे कंक्लूजन्स ऑलवेज गलत होंगे. इट शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर. होमोजेनिटी है डाटा की, तभी आप स्टैट्स की इंफॉर्मेशन को कंपेयर कर सकते हो, अदरवाइज देयर विल बी नो कंपैरिजन. हेट्रोजीनियस डाटा कैन बी कंपैरिजन. ठीक है, इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट वी हैव this there should be enumeration or estimated method used according to reasonable standard of accuracy. अगर small scale है तो we will always use enumerated method, और अगर large scale है we will always use estimated method. अब वो हमारे purpose पे, हमारी इंक्वायरी पे डिपेंड करता है कि हमारे लिए कौन सा मेथड एक स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी प्रोवाइड करेगा. आप लार्ज स्केल में एन्यूमरेशन मेथड यूज करोगे, इट विल नॉट गिव यू एक्यूरेट डाटा. तो ऑलवेज मेथड्स को उनकी एप्लीकेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही हम लोग यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इंफॉर्मेशन गलत हो जाएगी. एक पॉइंट और रह गया, इट शुड बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड. जितनी भी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है, मतलब अच्छा बुरा कम ज्यादा, ये इंफॉर्मेशन क्या है, क्वालिटेटिव, वो यूजफुल नहीं है स्टैट्स के अंदर. स्टैट्स सिर्फ कंसिडर करता है न्यूमेरिकल टर्म्स को, जिसे हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव टर्म्स. तो क्वांटिटेटिव टर्म्स का मतलब है कि हमें एक प्रॉपर मैग्नीट्यूड दिया होना चाहिए इंफॉर्मेशन के अंदर. लाइक सेल्स हैव बीन इंक्रीज बाय 10% फ्रॉम द लास्ट ईयर. तो इस बारी की जो सेल्स हैं वो 10% बढ़ गई लास्ट ईयर से. तो ये क्या हो गई, एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन. आप बताओ 7 के 7 पॉइंट्स में कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज, इसी के अगेंस्ट ना मैं आपको इसकी लिमिटेशंस भी करवा रही हूँ, वो बिल्कुल सेम हो जाएंगी तो जल्दी समझ भी आ जाएंगी. जितनी स्टैट्स की फीचर्स है ना, उसमें से उसके कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो उसके लिमिटेशंस में भी कन्वर्ट होते हैं. अच्छा बच्चों, अगर तुम्हें ये डेफिनेशन आती है प्लूरल सेंस में, तो प्लूरल सेंस में अकॉर्डिंग टू हॉर्स सेक्रेस्ट आपकी डेफिनेशन क्या है? स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स affected to marked extent by multiplicity of causes. सारे पॉइंट्स को मर्ज करना है. Placed in relation to each other, should be collected in a systematic manner for predetermined purpose, numerically expressed, should be enumerated and estimated according to reasonable standard of accuracy. ये आपकी plural sense की definition है according to Horst Secrist. clear है? Yes, ma'am. बस ये सारे पॉइंट्स को मर्ज करना एंड यू विल गेट डेफिनेशन इन प्लूरल सेंस. नाउ वी हैव लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स. अभी कौन आया? लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स के फीचर्स, स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशंस एंड स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस, इन तीनों में से कोई भी एक टॉपिक कंफर्म्ड है आपके पेपर में आएगा ही आएगा. अगर सब्जेक्टिव है तो इनमें से कोई भी एक पॉइंट आएगा ही आएगा. 3 to 4 मार्क्स में आता है, समटाइम्स 6 मार्कर में भी आ जाता है. तो दीज 3 पॉइंट्स रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. लिमिटेशन, सबसे पहला जो लिमिटेशन था हमने अभी फीचर में पढ़ा, स्टैटिस्टिक्स should be, it is concerned with the aggregate of facts only. So यही आपका एक लिमिटेशन बनता है. Statistics does not study individuals. देखो वही पॉइंट है ना, थोड़ा सा हमने उसको चेंज किया, वहां पे एग्रीगेट्स लेके आए, यहाँ पे हमने लिख दिया कि ये इंडिविजुअल्स की स्टडी नहीं करता. अब मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि स्टैटिस्टिक्स इंडिविजुअल लेवल पे जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसे कंसिडर नहीं करता. ये इसका एक लिमिटेशन है, डिसएडवांटेज है. लिमिटेशन मींस डिसएडवांटेज. सो इंडिविजुअल लेवल की स्टडी को हम लोग कंसिडर नहीं करते. हम लोग ऑलवेज ये स्टडी करता है किसको? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स को. सो इकोनॉमी के अंदर जितना भी एग्रीगेशन है हम लोग सिर्फ उसी को स्टडी करते हैं. इंडिविजुअल लेवल को स्टैटिस्टिक्स स्टडी नहीं करता. ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है. और मैं आपको बता चुकी हूँ इसका एग्जाम्पल लेके, जैसे सिर्फ हमने 90 के क्या किए थे, अकाउंट्स के मार्क्स कंसिडर किए थे. तो अकाउंट्स के जब हमने उसके मार्क्स लिए, दिस इज नो इंफॉर्मेशन फॉर अस.
अगर मेरे पास उसके सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, देन आई कैन कैलकुलेट द परसेंटेज, देन आई कैन कंपेयर द मार्क्स. सो दिस इज द एग्रीगेशन. क्लियर है बच्चों फर्स्ट पॉइंट? Yes, ma'am. तो वो पॉइंट जो हमने वहां किया था वो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स था. इसका रिवर्स है इंडिविजुअल लेवल. दिस इज द लिमिटेशन. अब एक और लिमिटेशन मैं करवा रही हूँ, वो भी उसके बिल्कुल रिवर्स है. हमने पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स शुड बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, है ना? इट शुड बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड. सो अगर कोई भी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है वो नहीं देता, तो स्टैटिस्टिक्स डज नॉट use any qualitative information. What does it mean? It always consider numerically expressed data only. Numerically expressed data. It never considers qualitative information. That we have already discussed. Only quantitative information will have measurement in statistics. Qualitative information will not be considered anywhere in statistics. Clear है बच्चों point ये वाला? कि with example explain करूँ? We have already discussed this point. Yes, please. Clear or not? Yes, ma'am. Clear. Third point we have is without reference results may prove to results may prove to be wrong. How? इससे पहले मैं एक टेबल के थ्रू आपको क्लियर कर रही हूं. मान लो ये हमारे पास सैलरीज दी हुई है 3 मंथ्स की, ए बी और सी की. ए की है 4,000, 6,000, थर्ड मंथ में 8,000 एंड उसके बाद इसकी है 6,000, 6,000, 6,000 और इसकी है 8,000, 6,000, 4,000. Right? अगर मैं इन सब की एवरेज निकालती हूँ, बताओ बच्चों ए की एवरेज क्या आएगी? एवरेज निकालनी आती है आप लोगों को? एवरेज आता है किसी को फाइंड करना? बताओ. इंडिविजुअल सीरीज है. किसी को नहीं आती है एवरेज निकालनी, है ना? देखो इन सबको प्लस करेंगे 3 है ना, ये 1 2 3 इस तरह से सबकी निकालोगे तो 6,000 ही आएगा. चेक कर लेना. 6 + 6 12 + 18/3 और ये भी सेम. एवरेज तीनों की एवरेज सैलरी 6,000 है. बट अगर तुम इस शेड्यूल को एनालाइज करो तो ए की सैलरी एवरी मंथ इट इज इंक्रीजिंग बाय 2,000. बी remains constant for every month and salary of C is decreasing every month. Here there is increment, here it is constant and here it is decreasing. But on an average basis, if I am saying without any reference, मैं reference नहीं दे रही हूँ फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि हर पर्सन की एवरेज सैलरी 6,000 है, which is wrong. क्यों? क्योंकि A तो हर बारी इंक्रीज कर रहा है और B कांस्टेंट लेवल पे ही है और C हर बारी डिक्रीज कर रहा है.
से कि सेम चल रही है? पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों कि अगर स्टार्स की इंफॉर्मेशन आप एवरेज बेसिस पे दोगे, मतलब बिना किसी रेफरेंस के दोगे, तो वो आपको सही रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करेगा। अब यहाँ पे मैंने कोई सैलरी है वो 6,000 है एवरेज सैलरी। बाय एवरी मंथ ए सैलरी इज डिक्रीजिंग बाय 2,000। दिस इज माय पॉइंट। यहां तक समझ आ गया सबको कि रिपीट करूं? बोलो। वॉइस इज नॉट क्लियर। आज यही चल रहा है, वॉइस इज नॉट क्लियर। जिनको क्लियर है वॉइस उनको समझ आया पॉइंट? यस मैम। रिपीट कर दो, आपकी आवाज क्रैक होता है। रिपीट पे कर देती हूँ रोहित, नो प्रॉब्लम बच्चे, बट अगर दोबारा क्रैक करेगी फिर तो प्रॉब्लम है ना। मुझे ये बता, मेरी आवाज आ रही है ढंग से क्लियरली? मैम अब आ रही है। अब आ रही है? यस मैम। अब एक बार ये पॉइंट दोबारा पढ़ ले फिर। विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स में प्रूव टू बी रॉन्ग। मैंने क्या किया, 3 लोग लिए ए बी सी, तीनों की 3 मंथ्स की सैलरी लिखी। एक की 4, 6, 8, 6, 6, 6, 8, 6, 4। अगर मैं इनके मंथ्स को कंसिडर ना करूं ना, तो मैंने इनकी एवरेज निकाली। इसकी भी 6,000, इसकी भी 6,000, इसकी भी 6,000। एवरेज बेसिस पे तीनों की अर्निंग है 6,000। बट अगर मैं मंथ वाइज चलूं तो मेरा ये कंक्लूजन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ए की सैलरी हर महीने बढ़ रही है, बी की सैलरी कांस्टेंट है और सी की सैलरी एवरी मंथ डिक्रीज कर रही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि तीनों सेम लेवल के ऊपर बैठे हुए हैं। ये किसका ग्राफ बढ़ता हुआ है, इसका कांस्टेंट है और इसका गिर। कि हमने ये इन्फॉर्मेशन किस तरह विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स में प्रूव टू बी रॉन्ग। मेरा रिजल्ट आया कि एवरेज सैलरी है 6,000, बट मेरा रिजल्ट गलत आया है। क्योंकि अगर मैं ऊपर देखूं इंडिविजुअल लेवल पे, इंडिविजुअल मंथ कंसिडर करूं, तो तीनों की इंफॉर्मेशन अलग है, सेम नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि तीनों की इंफॉर्मेशन सेम है। समझ आया रोहित पॉइंट? मैम लास्ट में, मैम लास्ट आवाज में, आई है? मैम लास्ट में अनवित क्या कह रहे थे, बोलो। लो बच्चे, मुझे आपकी आवाज नहीं आई है। कौन बोल रहा था? मैम यस मैं बच्चों बोल। मैम रोहित बोलो। मैम लास्ट में मैम वॉइस क्रैक हो रही थी। लास्ट में वॉइस क्रैक हो रही थी? यस मैम। ओके, मैं लास्ट वाला पॉइंट दोबारा बोल देती हूँ। अच्छा, बाकी सबको पॉइंट क्लियर है? अंकित? यस मैम। अंकित पॉइंट क्लियर है? यस। वेरी गुड अंकित, समझा दे फिर फटाफट। रोहित को समझ नहीं आया, अंकित पॉइंट समझाइयो। अंकित अब बोलेगा नहीं? रोहित सुन। यस मैम। हाँ अंकित। रोहित, यस मैम। रोहित मुझे बता, इससे तेरे को क्या पता लग रहा है? 4,000, 6,000, 8,000 क्या मतलब हुआ इसका?
मैंने ये सैलरीज दी हुई है, बता। फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, जल्दी बोल रोहित। मैम वो इसमें इंक्रीज हो रही है हाँ, एक ही salary। सैलरी हर महीने 2000 से बढ़ रही है, यही है ना? यस मैम। अब ये बता इसका मतलब क्या है? मैम बी मैम क्लियर नहीं दिख रही इसमें। 666 है रोहित। मैम इसमें इंक्रीज नहीं कर रही। कांस्टेंट है। अब इसमें बता। मैम डिक्रीज। डिक्रीज। अब मैं तेरे को रोहित ये कह रही हूँ कि ए बी सी तीनों 6-6 हजार रुपया कमाते हैं हर महीने, क्या मेरा कहना सही है? बोल। मैं बच्चे तेरे को कह रही हूँ कि ए बी सी तीनों 666,000 रुपीज का हम कमा रहे हैं एवरी मंथ। इज इट ट्रू? यस मैम। इट इज ट्रू। अगर ये सैलरी तेरी और मैं कहती हूँ रोहित तू तो 6,000 ही काम कमा रहा है हर महीने, तो क्या इन्फॉर्मेशन सही है? तीसरे महीने में तो तूने 8,000 कमाया है। नो मैम। फिर तो एवरेज बेसिस पे तो सही है ये, लेकिन अगर मैं इसको एवरी मंथ कंसिडर करूं तो दिस इन्फॉर्मेशन इज रॉन्ग, है ना? गलत। और इसकी तो सैलरी बढ़ी नहीं, ये तो कांस्टेंट है, और इसकी तो कम हो रही है। तो ये टेबल क्या कहता है कि अगर आप एवरेज बेसिस पे बिना किसी रेफरेंस के पॉइंट को बता रहे हो तो ये इंफॉर्मेशन गलत है, क्योंकि ए की सैलरी बढ़ रही है, बी की सैलरी कांस्टेंट है और सी की सैलरी डिक्रीज हो रही है हर महीने। क्लियर? यस मैम। पॉइंट समझ आ गया आप? तो स्टैट्स में भी यही पॉइंट है कि जब तक आप रेफर नहीं करोगे ना, आपके रिजल्ट्स गलत प्रूव हो सकते हैं। अब समझ आया पॉइंट? यस मैम। इसके बाकी के पॉइंट्स अब मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि तुम्हें काफी थोड़ा वॉइस प्रॉब्लम भी आ रही है अभी, तो अभी ये चैप्टर तुम्हारा फिर से रह गया। नेक्स्ट क्लास में पूरा होगा ये, क्योंकि इंपॉर्टेंस भी पड़ी है और एक थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स की 2 टाइप्स पड़ी हुई हैं, डिस्क्रिप्टिव और आपका इन्फ्रेंशियल वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। ओके बच्चों? मैम इसके अभी मैं वीडियो पे नहीं समझ ऐसे सुन लेना जो भी पॉइंट आपका रह गया होगा। बाय बच्चों। अनुराधा क्लियर है टॉपिक? अनुराधा, नवनीत, खुशी, अमन तो आया नहीं आज, अंकित? मैम क्लियर। हाँ बोलो अंकित, टॉपिक क्लियर है? मैम नेक्स्ट क्लास कब लगेगी? नेक्स्ट क्लास बेटा आज के थर्सडे सैटरडे कोई 3:30। ओके। हाँ बोलो। हाँ मैम इवनिंग में लगेगी। नहीं नहीं बच्चे नहीं, बस इवनिंग वाली मैंने आज की थी अभी ना, इसीलिए मॉर्निंग में की थी। यस मैम। ठीक है, अब आपके नॉर्मल टाइमिंग्स ही है सैटरडे को, और कभी भी अगर टाइम चेंज होता है ना तो जो एक क्लास होगी उसके बाद अगर दोबारा होनी होगी तो वो आपको मैसेज करेंगे, अदरवाइज ये टाइम चेंज हुआ था थोड़ा सा, इसीलिए आपकी क्लास मॉर्निंग होती है। दिव्या क्लियर है टॉपिक? नवनीत, रिद्धि, वाणी क्लियर है यस ना? मैम। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बच्चों। बाय मैम। बाय मैम। बाय, टेक केयर, बाय। थैंक यू मैम। ओके बेटा, बाय।